Okay. So, welcome students to our first lecture in the financial and cost accounting, paper 2. Okay. First, I'll explain you the syllabus, how it is. Okay. So, you must be knowing you have 4 papers, right? So, each paper is of 50 marks. So this is paper 2, which covers financial and cost accounting, both the subjects. So the weightage, if you see here, the fundamentals of financial accounting, that is for 70%. Okay, and 30% weightage is for fundamentals of cost accounting. Okay, and in that also, so in cost accounting, for 30 marks, you have the meaning definition of cost accounting, then the application of cost accounting, what is the definition of cost, cost center, cost unit, then classification and ascertainment of cost, and preparation of the cost statement. That's it. Okay. That is for 30 marks. 70 marks is for the fundamentals of accounting. Okay. And in that, the first chapter covers 30% weightage. Okay, so accounting fundamentals, that is very important topic actually from the basics of this financial accounting point of view. Then second is special transaction, that covers 15% weightage, and then the preparation of final accounts. Final accounts is for 25 marks. And you need not to prepare these accounts actually, because the nature of this paper is objective type, multiple type questions. Okay, so today we will be starting fundamentals of accounting, and we will cover 1.1 and 1.2 topic. Okay, so before we start our lecture, we will have just introduction round. You please tell me your name at least. Okay, let me introduce myself. Myself, Dhanashri Kharshinkar, Mori Kharshinkar. I am cost accountant. I have passed out ICWA in 2007 year. I have 15 years working experience post ICWA. Currently, I am working as a divisional manager with Advic organization, and my role is I am heading costing department there. Okay, so your name please. Bhumesh. Okay. Kashinath. Ashwini. Okay. 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 So let's start. So first topic 1.1, that is understanding of 4 frameworks of accounting and forms of organization. Okay, so the business, if you look at the business, okay, even though the forms of organization if we take, okay, so we will start the small scale business. What is the form of that organization? We will have the interaction around this. Okay, then we will go to theory. What is the first form of organization? If say some person starts any business, then that would be of which nature? Whether it will get converted into corporate immediately? No. So at the initial stage, that would be at sole proprietorship level. Okay, then slowly some people will join the partners, and then it will get converted into partnership business, and then
Again, then if it takes larger form, then it will get converted into corporate. Maybe private limited first, and then again based on their financial needs, it will get converted into public limited company. Okay, so this business means what? When we say business, whether it is done for the charity purpose? No, that is the economic activity. When it is said economic activity, it means it has some transactions of monetary nature. Something is exchanged for money or monetary terms. That is economic activity. Okay, and which is carried with the objective of earning profit from it. So that is business. Understood what is business? Okay. Now the forms of organization, as soon as it goes, okay, from sole proprietorship, then partnership, then to the corporate, it needs to check the transactions of business, and those need to be recorded because there are two objectives. To know whether the business is earning profit or not, there are two main questions which arises. That is whether it is earning something, that is profit or loss. Okay, and what is the position of the assets of the business or the financial position of the company. Okay, so this while carrying this business, the interest is of the owner, or say the person who is carrying this business, is to know whether our business is running efficiently and effectively. How we can say that my business is running effectively? When we will come to know whether the resources of the organization are efficiently and effectively utilized. Okay, and what are the resources of the organization? If you want to run business, whether any one single person can carry the business? No, they need resources. Those are 4 M's. 4 M's, पता है कौन से 4 M में that is required? बिजनेस करना है, एक तो क्या लगेगा? मनी, पैसा चाहिए, money. Then to run those business activities, who are required? Men. Employees लगेंगे, men. Then कहाँ पे they will carry these businesses? Machineries. And what they will convert into goods? Material. So these are 4 M's actually. So these resources, if these are utilized effectively, then only business can earn profit. So how business will come to know whether it is running effectively? For that purpose, they need to understand these 2 basic questions. एक minute. These 2 basic questions. ठीक है, we'll talk to them. Here you see these 2 basic questions. Okay, so what is the result of business operations? Okay, and how this will be answered? By finding out whether it is made profit or lost. So what is the result? Result मतलब profit हो रहा है या loss हो रहा है? हाँ, that business entity should know. And what is the second question?
what is the position of these resources acquired and used for business purpose? For example, now, okay, the position of resources, why it is written like this? Because in the resources we have material. Material means what? That is stock. Stock कहाँ पे दिखाते हो आप? In the balance sheet, asset side, stock. तो आपका मटेरियल का पोजीशन क्या है, कितना स्टॉक है आपके पास? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मनी ऑन द लायबिलिटी साइड? यू शो कैपिटल. Okay, so what is the position of that? How much is utilized? How much the balance you are carrying? Okay, and machinery. Machinery is your asset that will also go in the balance sheet asset side. Okay, so these two questions always need to be answered when any business activity is carried. Okay, and what is the need actually to answer this, to arrive at this result? Result मतलब क्या है? दो ही accounts है. Okay, दो मतलब trading is also part of P&L, but you understand, if you need to know the financial result of the organization, then you have to prepare P&L account. From the P&L account, you will come to know whether it is profit or loss your business is making. The second statement, that is financial statement. Okay, so the statement of position, that is balance sheet. Balance sheet किसके लिए रहती है? To know the financial position. आपकी liability कितनी है, आपकी asset कितनी है, and that is always prepared as on date. ये मालूम है ना? That P&L is always for the period. जो भी है, if it is prepared for the year, then P&L is prepared for that year, for that quarter. But always the balance sheet is prepared as on date. आज के balance sheet में क्या position है? Okay, balance sheet is never prepared for the year. Huh? Remember this. Huh? So now to answer these questions कि business में profit हो रहा है या loss हो रहा है, to know the position also of the business, कैसे पता चलेगा? It will come to know by preparing accounts. So that is why the need of accounting arrived. Okay, getting it? समझ में आ रहा है? ये combination ठीक है ना? You are getting it ना? Hindi, English? You can go through this theory. Okay, so यहाँ पे एक्टिविटी अगर बिजनेस कैरी करना है, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हाट इज द पर्पस? टू नो वेदर द रिसोर्सेस आर यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली. देन इफ इट इज यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली, इट विल ऑब्वियसली गेट कन्वर्टेड इनटू द फाइनेंशियल रिजल्ट. ओके, and to have the answer to these two questions, accounting need to be prepared. So what is the definition of accounting? Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner of monetary transactions and interpreting the result thereof. Okay, समझ के लो, मतलब इंस्टेड ऑफ बाय हार्टिंग दिस ना. हाँ, आप कौन सा नाउ फर्स्ट ईयर में हो क्या आप? हाँ, सो 11th-12th तो हो गया आपका. यू नो द हाउ टू प्रिपेयर दिस अकाउंट्स. हाँ, सो हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इन द फाइनल अकाउंट्स, व्हाई आई एम टेकिंग फाइनल अकाउंट्स? बिकॉज वी नीड टू हैव P&L एंड बैलेंस शीट. Okay, and these are the financial statements. These are called as. Okay, so आप पहले क्या करते हो? ट्रायल बैलेंस में आपको बैलेंसेस दिए रहते हैं एंड द ट्रांजैक्शंस दिए रहते हैं. What you do? You first record those transactions. Okay, whatever the transaction, if it is say purchase of goods for cash, so that is, this entry is initially recorded in the journal, that is the first book of entry, right? So in that you make that entry, you write debit and credit. From there then you prepare the ledger accounts, and after tallying those ledger accounts, those balances are transferred to the trial balance, right? ऐसे ही होता है ना.
जो भी एंट्री रहती है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, पहले आप एंट्री करते हो, एंट्री करने के बाद पोस्टिंग करते हो सभी इसमें लेजर में, लेजर देन टैली करते हो डेबिट क्रेडिट, जो भी हायर बैलेंसेस है वो बैलेंसेस कैरिड डाउन होता है, एंड दिस बैलेंसेस विल गेट इनटू ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के साथ हमें एडजस्टमेंट्स मिलते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस वगैरह स्टॉक के, द अदर ऑल्सो कितना अक्रूवल्स है, कितना आउटस्टैंडिंग है, एंड उसके हिसाब से देन यू रिकॉर्ड दोस इन द फाइनल अकाउंट्स. सो फर्स्ट तो आप रिकॉर्ड करते हो, देन यू क्लासीफाई दोज. क्लासीफाई कैसे करते हो कि मेरा बैलेंस शीट के अकाउंट्स कौन से हैं, वो वहां पे जाएंगे. इफ इट इज असेट इट विल गो इन द बैलेंस शीट, इफ इट इज रॉ मटेरियल है तो इट विल गो इन द P&L एज अ परचेसेस. सो ये आपने क्लासीफाई किया, फर्स्ट रिकॉर्ड किया एंड देन क्लासीफाई किया एंड देन समराइज किया. समराइज मतलब लेजर अकाउंट्स, टैलिंग ऑफ दिस अकाउंट्स, क्या क्या है बैलेंस शीट में, कैसे पोजीशन दिखेगा, अकाउंटिंग वगैरह लिख के यू हैव समराइज दोस ट्रांजैक्शंस, एंड दीज ऑल ट्रांजैक्शंस आर ऑफ, सी हियर, and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character. ये सबका मीनिंग क्या है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होना चाहिए. सो अगर नॉन मॉनिटरी है देन वेदर यू विल रिकॉर्ड. एक बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर गॉट अपॉइंटेड इन दिस ईयर, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, इसका आप एंट्री करोगे नहीं, दिस इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, मॉनिटरी नहीं है. सो ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस विल गेट रिकॉर्डेड. एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, इसके बाद फिर एनालिसिस होता है, क्या पोजीशन है उसका, रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन होता है, दैट इज अकाउंटिंग. ठीक है. And this accounting, the other definition is also given by American Accounting Association. Accounting means that is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of accounting. Okay, so you remember the first definition, American Institute of Certified Public Accountants accounts, what we discussed. Okay, and this accounting, there are three forms of this accounting. One is, as I said, you start with the recording of those transactions. Whenever any transaction takes place, you first make that entry in the first book of entry, that is in journal. That is what recording of transactions. So the initial stage of accounting is bookkeeping, then it takes the form of accounting, and then again the wider term of accounting is accountancy. If I go to this pie chart here given, see, so bookkeeping here, it is the subset of accounting. Getting it? ऑनलाइन आवाज नाही येते? अच्छा, माझं इकडे लक्षच नाही. का बरोबर? हॅलो हॅलो, मी पहिल्यांदा इनिशियली कन्फर्म करून घेतलं. गेला का आवाज? हॅलो स्टुडंट्स, तेजस्विनी, कॅन यू कन्फर्म? कॅन यू हिअर मी? येस. ऐका ना, मला इथे त्यांचा आवाज येत नाही पण लाऊड. इथे तुला ऐकत आहे ना तिकडे? हॅलो तेजस्विनी, कॅन यू से समथिंग?
We are checking whether I can hear you. Yeah, okay, ma'am. Sure. अच्छा तिकडे येतो. ओके हां. ओके आता आपण ना वी विल रिपीट इट शॉर्टली फॉर दॅम. See, we are again starting this chapter from this with the fundamentals of accounting, the 4 framework of accounting and the forms of organization. We discussed the forms of organization. Tejaswini, am I audible? I'm checking once again. आवाज नहीं आला ना? Can you type in the chat box? Hello ma'am, are you able to hear me? हाँ सागर सर, तुमचा आवाज आला मला, तेजस्विनीचा नाही आला. Okay. आता येतो तुमचा आवाज ऐका. हाँ हाँ ठीक है. ओके ओके. So Tejaswini, you were there from the beginning or shall I repeat? Can you repeat please? Okay. चला तुमची तेवढीच रिव्हिजन होईल. Okay, so we discussed what is the need of this accounting. Okay, if any business, any form of business, the whenever the economic activity means the transaction takes place, which is of monetary nature. Why it is called economic activity? Because this is the transaction carrying monetary nature and which involves the money transaction. Okay, and that is always this business means the economic activity and the objective is to earn profit from that transaction. Okay, so it is not carried for the charity purpose. Okay, so this business cannot be run in isolation. Can any one single person run this business? No, they need the resources to run this business. Okay, so we know actually 4 M's which are required to run the business. Students, now you know now 4 M's. Bola. Material, right? Then money, then men and machinery, right? So these 4 M's are required. These are the resources which are required to run the business. Business cannot run by one single person. If you take the example, okay, on a small scale now, this business is at, say, sole proprietorship level. Then slowly, based on the turnover, it gets converted into partnership act, partnership firm, okay? And after that, then it takes the form of corporate. Maybe initially as a private limited company, and if it gets listed, then it will get converted into public limited company. So whatever the scale of the business, these organizations need to know 2 questions. These are the 2 basic questions that is related to whether the business is running efficiently and effectively. If it is running effectively, then obvious they will be getting to know whether their resources are fully and effectively utilized so that they can earn profit from the business transactions. So 2 basic questions need to be answered. One is what is the result of business operations? Okay, and to find out this answer to this question, we need to prepare the P&L, whether it is made profit or loss. To have the answer of this, we need to follow accounting for the any type of business. And the second question, that is, what is the position of resources acquired and used for the business purpose? Why it is called resources?
Because see, we just now discussed about 4 M's. If it is machinery, then those are your asset, which will be shown in your balance sheet. So what is the position of your asset? How much is the book value? How much is utilized? And the balance is carried in the balance sheet in your financial book. Whether it is money, then it will get recorded on the liability side of the balance sheet. Okay, and that will be shown as your capital. If it is material, then that would be your stock. Again, stock will be treated as your, what type of asset it goes in your balance sheet? क्या बोलते हैं, कहाँ पे दिखाते हो? Whether it is fixed asset or current asset? Stock कहाँ पे दिखाते हो आप? Current asset, right? So stock, that material will also be shown in the balance sheet as on last date. What is the position of your resources? Okay, so to have the answer to these two questions, we need to follow accounting. In the accounting, you know how, now you only answer. Okay, from which financial statement you will come to know the result of the business organization. What is the result? Whether it is profit or loss. For that purpose, you prepare P&L account. And for a financial position or the position of the resources, for that purpose, you prepare balance sheet, which shows the financial position as on date. Remember, P&L is always prepared for the period and balance sheet is always prepared as on last day of that accounting period. As on date रहता है हमेशा balance sheet. Huh? Now we discussed about accounting definition. Okay, so what is the definition of accounting? Accounting is the art of, हाँ, देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये वर्डिंग्स क्या है, बिकॉज वट एवर यू हैव लर्न एक्चुअली 11th-12th में जो आपने पढ़ा है, हाँ, आपको कैसे जर्नल प्रिपरेशन आपको आया इन द 11th स्टैंडर्ड, यू लर्न दिस जर्नल के समय व्हाट दे गिव any business transaction. For example, let's take purchase of goods for cash. This is the transaction which is taken place. Now ये first क्या करोगे आप? You will record this. You will record in the journal. Debit credit लिखोगे, entry करोगे, right? उसका. Then you will move this to journal. prepare करने के बाद आप क्या करोगे इसके? Postings to ledger, right? Ledger prepare करने के बाद you will tally those ledger accounts and those balances you will transfer it to कौन सा? नहीं, डायरेक्टली बैलेंस शीट में कैसे जाएगा? पहले ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, then with the adjustment entries then you will prepare final accounts. And final accounts में what are the part of these accounts? क्या क्या prepare करते हो in the final accounts? ट्रेडिंग, P&L and बैलेंस शीट, राइट? सो वही लिखा है दैट द आर्ट ऑफ फर्स्ट यू विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, यू विल क्लासीफाई बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस. ये असेट है इफ द परचेस ऑफ गुड्स, हाँ, एंड द परचेस ऑफ मशीनरी. इफ इट इज गुड्स देन यू विल रिकॉर्ड इन द एज अ परचेसेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? परचेस करके जाएगा. इफ इट इज मशीनरी बेस्ड ऑन दैट ट्रांजैक्शन कहाँ पे जाएगा? परचेस मशीनरी कहाँ पे जाएगा? इन द बैलेंस शीट, फिक्स्ड असेट में. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्लासिफाइंग दिस अकाउंट्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. क्लासिफाई किया, देन यू आर समराइजिंग. समराइज कहाँ पे करते हो आप? इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, एंड विच आर दिस ट्रांजैक्शंस? in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, one of the new board member has joined the organization, okay, or appointed one of the board of director, उसका नाम दिया है. whether you will record the transaction? नहीं, this is qualitative information, this is not monetary. financial है क्या वो transaction? नहीं. Okay, so only financial character transactions or monetary, whether in terms of
money, that those transactions will get recorded. Summarization हो गया, which type of transactions? These are of monetary. Then interpreting the result thereof. इसके बाद जो interpretation होगा, analysis होगा based on these financial statements, that is what? Interpretation of result. ठीक है? Getting it? By heart करो, but understand करके करना, so that अपने आप आ जाएंगे ये definitions, you will not forget. ठीक है? Now, what are the objectives of accounting? Just now we discussed. जो मैंने बोला वही है यहाँ पे. Accounting follow करने के what are the objectives? क्यों करना चाहिए accounting? First is, पहले तो दो है. You know why the accounting is followed. जो यहाँ पे third and fourth दिया है. Ascertainment of result. हाँ, of business transaction. So ascertainment of result मतलब P&L हो गया. And the fourth last one, ascertainment of financial position of business मतलब balance sheet हो गया. So दो तो मालूम है, to know profit or loss, that is what? Financial result of the organization. And second is to know financial position, that is from the balance sheet. ठीक है, दो हो गए. And ये प्रिपेयर करने के बाद क्या होता है? ये प्रिपेयर जब भी अकाउंट्स होता है, इट गेट्स पब्लिश्ड, राइट? देन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग. Okay, and this is not the case. I mean, only for the external stakeholders these accounts are required. Okay, so the internal stakeholders are also interested to have क्या चल रहा है. अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉई हो, so you are internal stakeholders. Stakeholders मतलब who are interested in the or involved in the company's day to day transactions बोलो या you are to some extent you are involved in those. Employee भी है, employee भी he will desire ना कि what is going on in the organization. He will be interested to know. So employee है तो internal stakeholders. Stakeholders मालूम है the term stakeholders मतलब क्या? Who have stake to some extent. उनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं. सो कोई तो रिलेशन रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन से, एंड दे आर इन्वॉल्व टू सम एक्सटेंट एंड दे आर इंटरेस्टेड टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस. सो ये स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, दीज आर इंटरनल ऑल्सो एंड एक्सटर्नल ऑल्सो. सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल के स्टेक होल्डर्स, गिव मी द एग्जाम्पल्स. क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने बोला एम्प्लॉई है, इंटरनल स्टेक होल्डर हो गया. और कौन सी इंटरनल है? इंटरनल मतलब कंपनी में कौन कौन जुड़ा है, अंदर कंपनी के कौन कौन काम कर रहा है. ओनर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज है. एक्सटर्नल मतलब दोज आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हाँ, पार्टनर्स नाही म्हणू शकत. पार्टनर्स ॲक्च्युली इंटरनल होईल इफ वी टेक द एक्झाम्पल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कारण दे आर फुल्ली इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एक्सटर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कौन कौन है? यहाँ पे शेयर होल्डर्स है, हाँ, क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, जिसको आप बेच रहे हो माल, राइट? कस्टमर्स है, वैसे ही सप्लायर्स है. So all these stakeholders, okay, whether these are owners, investors also, bankers also, who are providing you financial support, they also should know na ki whether they will be getting their money back, right? So sabko they want to know what is going on. So for that purpose, providing information, accounting provides information to the users for rational decision making. Let's take example that you are going to invest your money in some company. आप अगर आपको इन्वेस्ट करना है कंपनी में, तो आप ऐसे ही जाके नहीं मुझे ये अच्छी लगी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, नहीं. आप देखोगे क्या चल रहा है, क्या फाइनेंशियल रिजल्ट है,
राइट, सब इंफॉर्मेशन निकाल के देन ओनली यू विल टेक द डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट. सो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? इट विल कम आउट ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होंगे, फ्रॉम देयर दैट इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड. दूसरा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. सिस्टमैटिक मतलब अब ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ओके, फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन द स्टेक होल्डर शुड अंडरस्टैंड कि क्या है इसमें लिखा हुआ. अगर वो समझेंगे ही नहीं, अगर अकाउंट्स प्रिपेयर भी किया है, बट इफ दे विल नॉट अंडरस्टैंड, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दोज अकाउंट्स. इसीलिए टू नो दोज, गिव दैट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, those systematic accounting needs to be done. And how this systematic accounting is done? By following accounting rules and principles. ठीक है? So you understood what is the objective of accounting? Accounting क्यों करना है? एक तो systematic records prepare करने हैं transactions की, okay? Then provide information to the users or stakeholders, then ascertainment of profit and ascertainment of financial position of business. And what are the functions of accounting? Same है, मतलब accounting मतलब functions मतलब how this accounting act as, वही है जो ऊपर है. okay, one is identification of monetary transaction, only monetary transactions it takes. Measurement of identified transaction and events. Then recording such transaction, वही पहले आइडेंटिफाई किया, देन मेजर किया, देन रिकॉर्ड किया, देन क्लासीफाई किया, एंड देन ऑब्टेन रिजल्ट, समराइज किया एंड इंटरप्रेट किया, देन एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग. ABCD A to F यू सी वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था अकाउंटिंग में. ठीक है, एंड उसके बाद देन टू कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स. ठीक है, ये थियरी एक्चुअली इतनी अभी नहीं है फाउंडेशन लेवल पे, बट यू शुड नो बिकॉज यू विल गो टू इंटरमीडिएट स्टेज. सो आपका बेसिक्स क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ठीक है, इसके लिए उसके हिसाब से पढ़ो, अदरवाइज ये मुझे नहीं लगने वाला. सो यू पे अटेंशन एंड फोकस. ठीक है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मत पढ़ो. हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग दिस चार्ट. सो बुक कीपिंग फर्स्ट है, छोटा लेवल है बुक कीपिंग का. देन अकाउंटिंग कवर्स बुक कीपिंग, जो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी पहले, उसमें बुक कीपिंग आ गया. बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस. उसके बाद आ गया दैट इज दिस आर्ट है एक्चुअली, कैसे रिकॉर्ड करना है बाय फॉलोइंग दिस principles accounting, and then interpreting the result thereof, monetary transactions. Then accountancy कब होता है? What is the difference? Accounting के बाद then accountancy covers accounting. So this accounting is the subset of accountancy. आ रहा है bookkeeping जो है that is the subset of accounting. Accounting is the subset of accountancy. So accounting को कब आप accountancy बोलेंगे? When accounting principles and standards are followed. Same is the purpose actually, to provide the information to the management for decision making. Okay, so interpreting the result thereof, the purpose is same, but when it becomes the wider concept when you follow these accounting standards and principles. Now who issues these accounting standards? That is issued by chartered accountants, ICAI standards board. okay, उसके accounting standards रहते हैं. same way cost accounting के भी standards रहते हैं, which are issued by cost accounting standards board. ठीक है, अब उसके बाद 4 frameworks of accounting. easy है,
हाँ, यहाँ तक ठीक है, आराम से जा रहा है। हाँ, अब जो फ्रेमवर्क्स है दैट इज वेरी इजी। हाँ, थियरी है, आप बाद में पढ़ लेना। फ्रेमवर्क मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क? दैट इज द स्ट्रक्चर। ओके, एक स्ट्रक्चर है, विद इन दैट, और यू कैन से लिमिटेशंस और द रूल्स, विद इन दोज दीज अकाउंटिंग नीड टू बी प्रिपेयर्ड। ओके, सो दैट स्ट्रक्चर नीड टू बी फॉलोड। सो ये स्ट्रक्चर जो है दैट फॉर्म्स अ सपोर्ट एंड फ्रेम फॉर समथिंग। तो ये किसके लिए सपोर्ट करता है? दिस स्ट्रक्चर, it provides set of rules and guidelines that are used to disclose information. Okay, एक framework है, framework में within that framework that accounting need to be followed. बराबर है ना? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अदरवाइज कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो हाउ कैन यू प्रिपेयर द रिजल्ट्स ओवर द पीरियड, राइट? कैसे भी प्रिपेयर करके चलेगा नहीं, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है, दोज नीड टू बी फॉलोड। नाउ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब ये आपने पढ़ा 11th-12th में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है। एट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, मुझे एक बताना वन बाय वन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स याद आ रहा है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पढ़ा है या नहीं? ऐसे देख रहे हो? हाँ, 11th में है, दिस इज द बेसिक्स। याद नहीं है? ठीक है, विल रिपीट। ठीक है, सो जो फ्रेमवर्क है वो तो 4 टाइप के फ्रेमवर्क है। ओके, सो ये अकाउंटिंग प्रिपेयर कैसे करने हैं विद इन द फ्रेमवर्क, दीज आर द रूल्स, प्रिंसिपल्स नीड टू बी फॉलोड। सो जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है दैट इज विद द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। कंसेप्चुअल है, सो कंसेप्ट्स फॉलो करने हैं। ओके, यू हैव दोज 8 अकाउंटिंग कंसेप्ट। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक उसमें से देती हूँ मैं एग्जाम्पल, आपको याद आएगा। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलते हैं उसको, दूसरा नाम। हाँ, उसका मतलब क्या है? वी एज्यूम दैट फर्स्ट इज उसका इनिशियल एक और एक कंसेप्ट है दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सो विथ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वी एज्यूम दैट द बिजनेस विल गो ऑन फॉर अ ऑन द एंडिंग पीरियड, राइट? आप जब भी डिसीजन लेते हो कि ये कंपनी है, आप ऐसे सोचते हो क्या वाइल इन्वेस्टिंग या डूइंग एनी टाइप ऑफ डिसीजन टेकिंग? तो आप ऐसे सोचते हो कि ये बिजनेस मेरा इमीडिएटली बंद पड़ेगा? नहीं, आप सोचते हो ये ईयर ऑन ईयर इट विल गो ऑन, राइट? गोइंग कंसर्न मतलब द बिजनेस विल गो ऑन ईयर, ठीक है? बट how will you come to know whether this business is making profit or loss? ये कैसे पता चलेगा आपको? उसके लिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट या पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बनाई है। सो उसमें क्या होता है? वी ब्रेक दैट अकाउंटिंग पीरियड। हमने अज्यूम कर लिया कि ये मेरा बिजनेस तो काफ़ी लंबा चलेगा, बट ये लंबा मतलब आपको पता कैसे चलेगा ये अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है, वेदर इट इज़ मेकिंग प्रॉफिट और लॉस? तो ये पता करने के लिए ये जो पीरियोडिसिटी मतलब एक साल अकाउंटिंग पीरियड एक फाइनेंशियल ईयर में ब्रेक किया। सो मैंने अज्यूम किया कि ये काफ़ी साल चलेगा, 50 साल चलेगा, बट 50 साल आई कांट वेट टू नो कि ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, नहीं वेट कर सकते हैं। सो एवरी ईयर आई शुड नो। तो वो जो एवरी ईयर है दैट इज द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हमने वो गोइंग कंसर्न जो लंबा पीरियड था उसको ब्रेक किया इन दी वन फाइनेंशियल ईयर। सो दैट फाइनेंशियल ईयर कैन बी कैलेंडर ईयर या जो फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं? जनवरी टू दिसंबर आया तो, हाँ। और फाइनेंशियल ईयर अपना जो रहता है दैट इज इनकम टैक्स का जो रहता है अप्रैल टू मार्च। सो ये किस में ब्रेक करना है? ये इसके लिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आया।
यू कांट वेट ना कि क्या हो रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा? एक एक साल का आप रिजल्ट देख लो, उसको ब्रेक कर लो। सो एक एक साल में आप P&L भी बनाओगे, एक साल के एंड में आप बैलेंस शीट भी बनाओगे, एंड देन अगेन नेक्स्ट ईयर यू विल कैरी दोज बैलेंसेस एंड आगे लेके जाओगे। बट एटलीस्ट यू विल कम टू नो कि क्या होगा, ये क्या हुआ है विद इन दिस 1 ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसके लिए ये अकाउंटिंग पीरियड आया। अगर ये आता ही नहीं तो क्या होता? ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है, दिस इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कंसेप्ट। अगर ये होता ही नहीं तो क्या होता? बोलो, एक साल में अगर ब्रेक ही नहीं करते हम तो ये ब्रेक करना है। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज ब्रॉट बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट। इसको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होते हैं, जो अकाउंटिंग के रूल्स है यू नीड टू फॉलो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क मतलब क्या है, समझ लो। अगर मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, देन दैट फर्म नीड टू बी फॉलोड द रूल्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अगर मेरी पार्टनरशिप, लीगल मतलब क्या है? बेस्ड ऑन द एक्ट विच इज एप्लीकेबल फॉर दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, हाँ, नीचे मत देखो, यहाँ पे देखो। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसके लिए जो एक्ट है वो अप्लाई होगा, पार्टनरशिप है तो उसके लिए जो एक्ट है वो अप्लाई होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो अप्लाई होगा पार्टनरशिप को। कंपनीज एक्ट 2013 किसको होगा? कॉर्पोरेट कंपनी के फाइनल अकाउंट जब भी आप प्रिपेयर करते हो तब। ठीक है, कंपनीज अकाउंट को आप पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लीगली वैलिड नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, राइट? तो आपको पता चले कि पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट ही फॉलो करना है। सो लीगल फ्रेमवर्क जो है, मतलब ये सेट करके दिया है, अगर ये फॉर्म ऑफ बिजनेस है देन दीज एक्ट रूल्स है, ये सभी रूल्स है। फ्रेमवर्क मतलब सेट है, हाँ, स्ट्रक्चर है जो करके दिया है, विच नीड टू बी फॉलोड। सो जो पार्टनरशिप के रूल्स है वो पार्टनरशिप फॉर्म फॉलो करेगा। कंपनीज के जो रूल्स है कंपनी एक्ट के हिसाब से कॉर्पोरेट विल फॉलो। इसको लीगल फ्रेमवर्क बोलते हैं। सो जो भी गाइडलाइंस होते हैं विच आर एप्लीकेबल, विच आर लीगली, these are introduced, those should be applicable to that particular form of business. लीगल फ्रेमवर्क मतलब पता चला, पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट लगेगा, कॉर्पोरेट को कंपनीज एक्ट लगेगा, सोल प्रोप्राइटर को वैसे लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्चुअल एक्ट एप्लीकेबल होगा, जो जिसका एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी है देन इंश्योरेंस कंपनी का एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क आया ध्यान में, कंसेप्चुअल आया है ध्यान में, अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो फॉलो करने। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो 8 है वी विल लर्न दिस टुडे ओनली। हाँ, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। सो इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या है? जो अकाउंट्स के जो स्टैंडर्ड बोर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैंने 2 बातें बोली अभी, आपको आगे जाके आएगा वो। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से देर आर एएस बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, देर आर नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट नीड टू बी फॉलोड। एक एक का, अगर मुझे असेट का अकाउंटिंग करना है तो क्या है, डिप्रिसिएशन का मेथड फॉलो करना है, डिप्रिसिएशन का मुझे अकाउंटिंग करना है तो उसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन करना है तो उसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ऑल दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिफाइंड। ये कौन डिफाइन करता है? ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड बोर्ड, वो स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ, सो आप अगर अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो देन यू हैव टू, अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हो तो ये AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो, 2 चीज़ें हैं, यू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो। ठीक है, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो देन कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे? अगेन ICAI मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सो ये दो इंस्टीट्यूट्स है विच आर एप्लीकेबल। ICAI ही है बट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने होते हैं। दीज आर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि अकाउंट्स में आया तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आई, कॉस्टिंग में आया तो कॉस्ट अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड बोर्ड आए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है? दो ही है ये इंस्टीट्यूट्स के जो प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, दोज नीड टू बी फॉलोड। फोर्थ जो है दैट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी मतलब क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो है अपने कंट्रीज के वो फॉलो करने पड़ेंगे हमें। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के रूल्स रहते हैं। अभी हम क्या, आप एक एग्जांपल ध्यान में रखो कि आपका एक फर्म है तो उसका अकाउंटिंग आपको करना कैसे है। एक तो अकाउंटिंग करते समय आपको कंसेप्ट फॉलो करने हैं उसके। डुअल एस्पेक्ट मतलब क्या है? एक ट्रांजैक्शन आया तो उसके दो इफेक्ट्स हैं, जैसे कॉइन की दो साइड है, उसका भी हर एक ट्रांजैक्शन का एक डेबिट है एक क्रेडिट है। ये भी कंसेप्ट ही है अकाउंटिंग का, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, सो एक तो कंसेप्ट फॉलो करके आपको रिकॉर्ड करने हैं ट्रांजैक्शंस। दूसरी बात, मेरा कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म ऑफ बिजनेस है, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा, उसके हिसाब से मुझे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अब डिफरेंस क्या है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये अगर आप पेज देखोगे ना, ये आफ्टर दिस थ्योरी, तो दीज आर द अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड। यहाँ पे नीचे टेबल दिखाई दे रहा है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो क्या आप बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पार्टनरशिप है, देन इन एडिशन टू दिस थ्री एक वन मोर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज व्हाट? P&L अप्रोप्रिएशन। सो जब भी आप प्रॉफिट बनाते हो, मतलब आपको प्रॉफिट पता चला, P&L अप्रोप्रिएशन मतलब क्या है? प्रॉफिट आ गया आपका, समझो 1 लाख प्रॉफिट आ गया, तो इसका अप्रोप्रिएशन मतलब कितने उसके पार्टनर्स है। अप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है। पार्टनरशिप हुआ आपका, उसमें कैसे करते हो? जो भी प्रॉफिट है पार्टनर ABC उनके बीच में जो भी पार्टनर शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हो। वो कौन से अकाउंट में करते हो? ये वाले अकाउंट में, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आएगा मेरा प्रोप्राइटरशिप में? नहीं, क्योंकि एक ही है, उसमें पार्टनर्स है नहीं, राइट? कंपनी में नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टली इट विल गो टू योर कैपिटल में, रिजर्व में ऐड होके कंपनी में। देन फिर कंपनी विल टेक डिसीजन क्या करना है, वेदर इट शुड कीप इन द बिजनेस फॉर द एक्सपेंशन पर्पज और टू डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड। ठीक है, सो कंपनी है तो कौन से अकाउंट्स आप प्रिपेयर करोगे? हाँ, सो ये हुआ लीगल फ्रेमवर्क। पार्टनरशिप एक्ट है तो आपको P&L अप्रोप्रिएशन बनाना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे आप फॉलो कर रहे हो लीगल फ्रेमवर्क। मेरा अगर पार्टनरशिप फर्म है तो मैं अकाउंटिंग कैसे करूँगी? पहले तो मैं कंसेप्ट फॉलो करूँगी। क्या क्या अकाउंटिंग का कंसेप्ट है? 2 पीरियड में 1 साल के सभी ट्रांजैक्शंस करना है। ऐसे नहीं कि 2 साल के ट्रांजैक्शंस मैंने अभी के रिकॉर्ड कर लिए, चलेगा? नहीं चलेगा, राइट? दूसरा, ये लीगल फ्रेमवर्क आप फॉलो करोगे कि P&L पार्टनरशिप है तो मुझे अप्रोप्रिएशन भी बनाना है। लीगल फ्रेमवर्क फॉलो किया। तीसरा कौन सा था? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रही हूँ या मैं अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही हूँ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मुझे फॉलो करने हैं, राइट? वो फॉलो कर लिया। चौथा क्या करोगे? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब गवर्नमेंट के क्या रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंपोर्टेड मटेरियल लाया, ओके, से सम रॉ मटेरियल है, आयरन का पार्ट है वो, हाँ, तो उसके ऊपर अब मैं पार्टनरशिप फर्म है मेरा, आपका समझो सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपका कंपनी है, हाँ, तो सभी को ये फोर्थ है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ेगा। हम सभी लोग इफ वी आर बाइंग दिस इंपोर्टेड मटेरियल तो उसके ऊपर ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो ड्यूटी की कौन परसेंटेज डिसाइड करता है? दैट इज बाय द रेगुलेशन, राइट? बजट में भी इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं। कंपनी का आपका प्रॉफिट होने के बाद आप कैसे इनकम टैक्स फाइल करोगे? जो डिक्लेयर हुआ है बाय गवर्नमेंट, इट कम्स अंडर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो ये सब फॉलो करने के बाद भी, मतलब मैंने अकाउंटिंग भी फॉलो किया,
मेरा इंस्टीट्यूशन का भी किया, मैंने कंसेप्ट भी फॉलो किए, मैंने पार्टनरशिप एक्ट लीगल भी फ्रेमवर्क किया, फिर भी मुझे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करना ही है, क्योंकि दोज आर अगेन द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स नीड टू बी फॉलोड फॉर अकाउंटिंग पर्पज। ठीक है, सो उसके ऊपर ड्यूटी कौन फाइल करेगा, कितना परसेंटेज लगेगा, दैट विल बी डिसाइडेड हियर। ठीक है, सो यू आर गेटिंग कनेक्शन कैसे है ये सब ट्रांजैक्शंस का। हाँ, हमेशा वो एग्जाम्पल सामने लाया करो सो दैट कि 4 फ्रेमवर्क कौन से है, देन यू कैन इमीडिएटली रिमेंबर दिस कि क्या है। गिव मी अ मिनट। पानी पैसे, हाँ जाओ। So here we have covered first topic 1.1 वाला। ठीक है, फॉर लीगल फ्रेमवर्क क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है, रिलेशन क्या है विद बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, एक चीज रहेगी LLP, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप फॉर्म के बाद ये यहाँ पे ये LLP जो है फोर्थ, ये शायद नहीं होगा आपको अकाउंट्स में भी, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। ठीक है, जहां पे लायबिलिटी इज लिमिटेड ऑफ दोस पार्टनर्स। अदरवाइज वो पार्टनरशिप एक्ट में कैसे होता है ना, आप लॉस वगैरह होने के बाद रिकवरी कैसे होती है, हाँ, और जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है उसी हिसाब से लॉस भी दैट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एक्चुअली अमंग द पार्टनर्स। सो वैसे ही यहाँ पे जो है नया दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, हाँ, एंड ये यहाँ पे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, इसका अकाउंटिंग वगैरह आपको नहीं है इसमें। सो यहाँ पे देते समय 4 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप दिया है उन्होंने, पार्टनरशिप दिया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स दिया है, उसमें P&L एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी है वहाँ पे, इसीलिए अप्रोप्रिएशन वगैरह नहीं है यहाँ पे। एंड देन द कंपनी, कंपनीज का हमारा
हमेशा का ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. इन एडिशन टू दैट उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं उसको. दैट इज कैश फ्लो मतलब कितना कैश आ रहा है जा रहा है. कैश बुक जो है आपका वैसे ही रहता है. कैश का कितना फ्लो है मेरा, व्हाट इज द इनफ्लो एंड व्हाट इज द आउटफ्लो. कैश फ्लो स्टेटमेंट एक है एंड स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन अदर इक्विटी या अदर एसेट्स. फंड्स में, फंड में मेरा कितना अप डाउन हो रहा है, कितना इनफ्लो है कितना आउटफ्लो है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया, मेरा फंड्स बढ़ गया, इनफ्लो है. मैंने लोन दे दिया किसी को या कुछ इंटरेस्ट पे किया लोन पे, तो दैट इज माई आउटफ्लो. ऐसे है. ठीक है. फंड फ्लो आउटफ्लो शायद आपको आएगा बीकॉम में ना बाद में. सो दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन कि क्या क्या अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आ रहा है समझ में. हाँ, आप ना और अब अकाउंट्स के लिए आपके फ्रेंड्स को भी बोल दो, क्योंकि इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. एक बार क्लियर हुआ ना तो आगे जाके कभी भी आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा. क्योंकि अकाउंट्स में कैसे है, जब तक बेस क्लियर नहीं है ना, स्ट्रांग नहीं है ना फाउंडेशन, हमेशा ये कंफ्यूजन में रहोगे. अरे इसका एंट्री इसको तो नहीं जाएगा, ये नेचर है क्या, इसका कैपिटल नेचर है या कैश नेचर है. हाँ, तो अगर फाउंडेशन क्लियर है, स्ट्रांग है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. हाँ, यू विल स्ट्रांगली स्टैंड बाय योर लॉजिक कि नहीं ऐसे ही है, इसका अकाउंटिंग ऐसे ही होना चाहिए. ठीक है, आगे जाके काफ़ी लगता ही है व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग इन द कॉर्पोरेट. सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मत सोचो कि एग्जाम करना है, चलो मैंने इतना ही कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, ये मुझे नहीं लगेगा. बट कंसेप्ट क्लियर कर लो एक बार. इसीलिए फ्रेंड्स को भी बोलो आपके कि अटेंड करो, क्योंकि जहाँ पे क्लास में जैसे होता है ना टीचिंग, वैसे लर्निंग ये ऑनलाइन ठीक है. ऑप्शन अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ आने के लिए, अगर मतलब दूसरे स्टेट या दूसरे लोकेशन में है स्टूडेंट्स, तो अदरवाइज आस्क देम टू अटेंड ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे आके. ठीक है, और आप भी पढ़ो. वैसे ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो मतलब लगेगा कि काफ़ी सारा है वगैरह, नहीं, लेकिन लर्निंग अच्छे से करोगे तो मज़ा आएगा. अकाउंट्स बहुत इजी और मज़ा वाला सब्जेक्ट है. जैसे मैथ्स रहता है ना आपका स्कूल में, अगर लॉजिक आ जाता है तो कितना मज़ा आता है मैथ्स सॉल्व करने में, राइट. वैसे ही अकाउंट्स का. इसीलिए फंडामेंटल स्ट्रांग करो. अब ये नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, हमेशा लगने वाला ही है फाइनल, आगे जाके भी. हाँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. आई विल गो टू दैट. So now, what is the objective actually in the introduction? What is the objective and why it is necessary to have these accounting concepts and conventions? I told you that this accounting is prepared based on the accounting conceptual framework. So for that purpose, we need to follow these accounting concepts. क्यों ज़रूरत है? What is the major need actually कि accounting concepts follow करना? आप कॉर्पोरेट आप कंपनी चला रहे हो, आपका पार्टनरशिप है, मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है. हाँ, आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल विल टेक कि अश्विनी एक स्टेक होल्डर है, शी वांट्स टू नो कि कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ, कौन अच्छा कर रहा है. ओके, सो वो वेदर शी शुड हैव दैट इन्फॉर्मेशन कि नहीं पार्टनरशिप है तो नहीं, ये अलग से मुझे देखना चाहिए, या कंपनी है तो मुझे अलग सा नॉलेज होना चाहिए उनके अकाउंट्स रीड करने के लिए, या सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसका रीड करने के लिए अलग सा नॉलेज होना चाहिए. नहीं. ओके, दीज आर द यूनिफॉर्म रूल्स है विच एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस नीड टू बी फॉलोड. मुझे भी वही करना है फॉलो, आपको भी वही करना है, आपको भी वही करना है. और जो रीड करेगा उसको भी इन द यूनिफॉर्मिटी, मतलब सेम सब दिखेगा. बैलेंस शीट दिखेगा, बैलेंस शीट में एसेट कितना है, लायबिलिटीज कितना है, वैसे ही देखेगा कि मेरा फिक्स्ड एसेट कितना है, करंट एसेट में स्टॉक्स, AR AP क्या पोजीशन है,
हाँ, AR इधर लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में AP का पोजीशन क्या है, सेम ही स्ट्रक्चर में दिखेगा, आपके इधर भी सेम दिखेगा। आप दूसरा कुछ उसके ऊपर मतलब लिखोगे नहीं या दिखाओगे नहीं कि बाबा अलग सा ही दिखाया आपने। हाँ, क्यों नहीं दिखा सकते? बिकॉज वी आर फॉलोइंग दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट। एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज टू फॉलो दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट। सो जो भी है, क्यों? टू ब्रिंग दिस यूनिफॉर्मिटी। सो ओवर यू कैन कंपेयर द रिजल्ट one by one, company also, and for that one organization period by period. अब फॉर एग्जांपल कंपनी का एग्जांपल लेंगे, आप कंपनी चला रहे हो, उसको रिजल्ट देखना है ये साल का क्या है, पिछले साल का कितना था, उसके पिछले साल का कितना था, सेम ही रहेगा। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, देन ओनली शी कैन कंपेयर दोज रिजल्ट। अगर आपने कुछ अकाउंटिंग अलग ही बनाया पहले साल, दूसरे साल अलग ही बनाई, तो वेदर शी विल अंडरस्टैंड, यूजर कुछ नहीं पता चलेगा, उसको इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिलेगी, राइट? इसीलिए दीज आर द कंसेप्ट कि ये ऐसे ही फॉलो करने हैं। अगर आपने 2 साल का ट्रांजैक्शन एकदम से बुक किया, नहीं बाबा ये मुझे नेक्स्ट ईयर भी आने वाला, ये रेंट आई नीड टू पे, चलो मैं अभी रिकॉर्ड कर देता हूँ, सो P&L में मैंने डाल दिया रेंट एक्सपेंसेस 2 साल का, चलेगा नहीं। सो इसके लिए जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है वो फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अब वी विल गो थ्रू दिस, हाँ, देन हम वी कैन रिलेट टू, अभी जो बात कर रहे हैं ना उसे रिलेट कर लेते हैं हम। सो एक तो कंसिस्टेंसी के लिए फॉर द कंपैरिजन पर्पस इजीली कंपेयर हो सकता है पीरियड बाय पीरियड एंड कंपनी बाय कंपनी ऑल्सो। सो दैट इज वाई these guidelines need to be followed। and गैप मतलब क्या है? GAAP का, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, लॉन्ग फॉर्म क्या है उसका? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या है? दीज आर, ये यहाँ पे है गैप, ये एक मिनट है। जनरली एक्सेप्टेड मतलब दीज आर एक्सेप्टेड बाय, जनरली मतलब बाय ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटिटीज, सबने एक्सेप्ट किया हुआ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। और ये नीड टू बी एग्रीड ऑल्सो ना, अगर पार्टनरशिप फॉर्म्स है तो दे ऑल्सो नीड टू बी एग्रीड। एक आएगा और बोलेगा नहीं मैं नहीं ये फॉलो करूंगा अकाउंटिंग, पार्टनरशिप एक्ट के मैं रूल्स आई विल नॉट फॉलो, चलेगा नहीं। तो ये दिस शुड बी एक्सेप्टेड बाय जनरली मतलब ऑल ओवर। हाँ, सो ये गैप जो है दैट प्रोवाइड्स दिस गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इवेंट्स। Now financial statements, these are prepared based on these accounting standards. Okay, यहाँ पे है। So हमने already ये discuss किया that these are accounting standards। ये यहाँ पे देखो, in India financial statements are prepared on the basis of, इनएक्टिव करून घ्यायला पाहिजे होतं। नाही, हे कनेक्ट नाही केलं ना आपण, अप्लायन्सेस मध्ये करायला पाहिजे होतं, ड्रॉ मध्ये नाही होतं, इथे हे ऍक्टिवेट नाही आहे ना, कनेक्ट नाही केलं आधी। ठीक आहे, मी ते अप्लायन्सेस मध्ये नाही जाते, अदरवाइज हे पण पुन्हा डिस्टर्ब नको व्हायला। हां, इथे बघा आता, इन इंडिया फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेअर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स, दोज आर इशूड बाय द Institute of Chartered Accountants of India and the law laid down in the respective applicable statutes. These accounting standards as well as rules prescribed under various statutes have the gap at that core. ठीक है, so what are these generally accepted accounting principles? Huh? So there are two types of principles.
वन इज कंसेप्ट एंड सेकेंड इज कन्वेंशन. यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन. ठीक है. सो जो भी अकाउंटिंग कंसेप्ट है एंड कन्वेंशन है, दोज आर द प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स, क्या फॉलो करने हैं आपको. ठीक है. सो विल टेक वन बाय वन. सी, accounting principles refer to those rules of action that are universally adopted. इसीलिए उसको generally accepted बोल रहे. Universally adopted by accountants for recording accounting transaction. अगर कुछ कॉम्प्लेक्स कर दिया ट्रांजेक्शन, नहीं ये वाला ट्रांजेक्शन ऐसे ही रिकॉर्ड करना है, सो मे बी ऑब्जेक्शन हो सकता है जाके, फिर उसका देन सोल्यूशन आएगा उसके ऊपर, मे बी एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा या दूसरा कुछ निकल के आएगा, बट दो शुड बी एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स. अब ये जो प्रिंसिपल्स है, दीज आर क्लासिफाइड इनटू दो कैटेगरीज है. एक है अकाउंटिंग कंसेप्ट, 8 अकाउंटिंग कंसेप्ट है, एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस 4 है. एक एक ले लेते हैं हम अकाउंटिंग कंसेप्ट. सो फर्स्ट वन इज एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. अब ये दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम्पल कैसे आएगा. फॉर एग्जाम्पल डैश इज द कंसेप्ट विच रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इनटू पीरियड ऑफ 12 months वगैरह, मतलब अकाउंटिंग पीरियड हो गया ये. ठीक है, कंसेप्ट. या मैं इसको आपको बताती हूँ तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे इसके. एंड आफ्टर दिस टॉपिक वी विल हैव द ऑब्जेक्टिव्स आल्सो. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स करके फिर वी विल गो अहेड. ऐसे ही मैं ऐसे ही करती हूँ, जितना कवर हो जाता है उसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे. एक तो है एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. रीड कर रही हूँ, देन वी विल टेक वन बाय वन. पीरियोडिसिटी, मनी मेजरमेंट, नाम से ही पता चलेगा, आप जस्ट फोकस कर लो, आपको पता चलेगा इसमें क्या हो सकता है. एक्रूअल कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट मतलब डेबिट क्रेडिट होना चाहिए. मैचिंग मतलब मैच करने के लिए रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दोनों मैच होना चाहिए. P&L में क्या करते हो आप, एक्सपेंसेस एंड इनकम कंपेयर करते हो, राइट, मैच करते हो. सो दैट इज मैचिंग. टैली मतलब क्या, मैच क्या करते हो, दोनों. अगर हाँ उधर जाएंगे तो मैं बताऊंगी क्या है उसमें. देन रियलाइजेशन कंसेप्ट. रियलाइजेशन मतलब क्या है, कब मिलेगा मुझे. फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल किया, हाँ कैश पे सेल किया कस्टमर को, कस्टमर में कैश है ट्रांजेक्शन, इसलिए इमीडिएट कैश दिया, सो ये मेरा मनी रियलाइज हो गया. मैंने क्रेडिट उधार पे किया, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट पे मैंने सेल किया, मुझे अभी पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझे बाद में पैसा मिलेगा. कब बाद में, जो भी क्रेडिट टर्म्स है, 1 महीने के अंदर है, 1 to 30 days में पे करना है, 1 to 15 days में पे करना है, ये कंपनी. हाँ, रियलाइजेशन मतलब कितना मेरे पास आ रहा है, एक्चुअल में कितना मुझे पैसा रियलाइज हो रहा है, मिल रहा है वो. ठीक है. सो रियलाइजेशन में कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे देते हैं वो है. देन कॉस्ट कंसेप्ट. कॉस्ट कंसेप्ट मुझे क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट मतलब इतना सिंपल है कि आप जब भी असेट पर बाय करते हो, देन यू हैव टू शो इट इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट, नॉट एट द मार्केटिंग प्राइस. ठीक है, मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस पे आप दिखाते हो क्या असेट, नहीं, आप एट कॉस्ट दिखाते हो. जो भी आपके पास असेट्स है दो शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. इतना इजी है कि कंसेप्ट. ठीक है. और वैसे ही कन्वेंशंस मतलब क्या है, दीज आर थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करना है. कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर, इसको बाद में आते. अभी एक एक कंसेप्ट ले लेते हैं. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब क्या है, देयर शुड बी, यहाँ पे देखो बाद में रीड करना, सिंपल है. बिजनेस एंटिटी मतलब देयर शुड बी सेपरेशन बिटवीन बिजनेस एंड ओनर ऑफ द कंपनी. हाँ, अगर मैं ओनर हूँ, सोल प्रोप्राइटर हूँ, हाँ मैं पैसे डाल रही हूँ,
बिजनेस में, तो आप कैसे दिखाते हो उसका अकाउंटिंग एंट्री, क्या करते हो, बैलेंस शीट में कैपिटल करके दिखाओगे. व्हाई यू आर शोइंग एज अ कैपिटल, बिकॉज यू आर शोइंग दैट. असेट में क्यों नहीं दिखा रहे हो, लायबिलिटी में दिखा रहे हो. कैपिटल है ना, आपका पैसा है. हाँ, तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि अरे मेरा ही पैसा है, मेरे बिजनेस के लिए, सो असेट करके दिखाओ कैश में. नहीं. व्हाई यू आर शोइंग, बिकॉज दिस इज द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलोड. यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है. ओनर भले ही रहने दो, बट बिजनेस एंड ओनर इज केप्ट सेपरेट. ठीक है. सो आप लायबिलिटी में क्यों दिखाते हो, बिकॉज दैट इज द मनी विच इज फॉर द बिजनेस, इट इज बोरोड फ्रॉम द ओनर एंड वी हैव द लायबिलिटी टू पे इट बैक. उसका पैसे हम कैरी कर रहे हैं, इसलिए एसेट नहीं आता कैपिटल में, लायबिलिटी करके आता है. ठीक है ना. वैसे ही ये हो गया ओनर का पैसा. वैसे ही आप जब भी लोन लेते हो, लोन लेने के बाद भी आपको वापस भी तो करना है, इसीलिए लायबिलिटी में आ रहा है ये सभी चीज़ें वापस करना. सो आपने ऐसे बोला कि हाँ नहीं मेरा ही पैसा है, जाने दो, मुझे क्या करना है, जो भी आएगा मेरा ही है. नहीं, उसके ट्रांजैक्शंस, अगर उसने पैसे लिए, ओनर हैज टेकन सम मनी फ्रॉम द बिजनेस, आप क्या करते हो, ड्राइंग्स करके दिखाते हो, उसने पैसा उठा ले लिया. हाँ, खर्चा दिखाते हो क्या, नहीं मुझे चाहिए, मुझे पर्सनल है, मुझे हाँ कुछ तो पैसे देना है, एक कोई चीज़ का किसी को वापस देना है, खर्चा दिखा दो. खर्चा दिखाओगे नहीं, आपका पैसा लिया था ना, आपका ही पैसा हमने कम कर दिया क्योंकि आपने पैसा इसमें से वापस ले लिया. ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस करते हो ना. आ रहा है समझ में. सो ये क्या है, क्यों है, बिकॉज दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट, business entity concept. So here the transactions of owner and business are kept separate. These are segregated. Understood? आया समझ में. Then going concern concept. Going concern मतलब क्या है, we assume that the business will continue to operate for a longer period of time in future. मतलब हम क्या करते हैं, जब भी हम इन्वेस्ट भी करते हैं, आई डोंट अज्यूम कि मैं ये कंपनी में, हाँ चलो मुझे इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है, डू आई थिंक दैट नहीं ये नेक्स्ट ईयर बंद पड़ेगी कंपनी. नहीं, हम सोचते हैं कि ये तो सालों साल चलने वाली है आगे. सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कभी भी हमेशा व्हेनेवर वी टेक एनी डिसीजन, that is based on the assumption that this entity will go on a longer period in future, longer period. ठीक है. So that is going concern concept. हाँ, अब ये कंसेप्ट तो ला लिया इन्होंने, हाँ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में. नाउ दिस पीरियोडिसिटी नेक्स्ट, हाँ उसका another name, periodicity is also known by dash accounting period. periodicity का दूसरा नाम है accounting period concept. So हमने तो सोच लिया कि बाबा ये अभी it will go for a longer period of time. हाँ, बट ये अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के लिए shall we wait कि नहीं नेक्स्ट ईयर करते हैं, नेक्स्ट ईयर करते हैं, नहीं. तो ये किधर तो ये लॉन्ग पीरियड जो है, ये फैसला हमें किधर तो कट करना पड़ेगा. सो दैट इज कर्टेल्ड इनटू 12 months. उसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं. आ रहा है समझ में. तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट अज्यूम्स दैट दिस इनफाइनाइट लाइफ, इनफाइनाइट लाइफ मतलब क्या, ये जो हमने सोचा था कि ये सालों साल चलेगी, सालों साल जो चलेगी, वो जो लाइफ है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, that can be split into smaller period of equal duration. उसको हमने equal duration में डिवाइड कर लिया. एक साल में प्रिपेयर करेंगे, 3 महीने में करेंगे, हाफ ईयरली 6 महीने बाद करेंगे. उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड. एंड ड्यू टू दिस कंसेप्ट द ऑपरेटिंग रिजल्ट आर असर्टेन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. इसी वजह से हमें वो पता चलता है कि क्या हो रहा है बिजनेस में. अगर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ही नहीं है, कैसे पता चलेगा आपको, नहीं चलेगा, राइट. तो
अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आया। कैसे आ रहा है, एक एक नीड हो रहा है और उसके हिसाब से फिर ये फ्रेमवर्क करना पड़ रहा है कि ये भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो भी है, हर एक का नीड है। यहाँ पे 3 कंसेप्ट आए समझ में। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये तो आपको पता है, मतलब क्या, a business transaction will always be recorded if it can be expressed in terms of money। अगर मनी में है ही तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे। और इसमें से पैसा आ रहा है जा रहा है, तो अगर मनी में है देन व्हेन एक्सप्रेस्ड इन कॉमन मेजर ऑफ मनी, उसका मेजरमेंट जो है वो पैसा है विच इज कॉमन। बराबर, मैंने आपसे पैसे लिए, मैंने इनको देना है पैसे, हाँ, तो ये प्लस माइनस आई कैन डू, राइट, आई कैन शो नेट। बिजनेस में मेरे दिखते समय नेट दिखेगा, क्यों, क्योंकि आपसे जो ट्रांजेक्शन है उसका भी बेसिस मेरा कॉमन है विच इज मनी, इनका भी है विच इज मनी। सो मेजरमेंट जो हो रहा है जिसमें हम मेजर कर रहे हैं दैट इज मनी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आया समझ में, हाँ। सो मतलब क्या है, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। अब नाउ एक्रूवल कंसेप्ट, नेक्स्ट है एक्रूवल। एक्रूवल मतलब क्या है, हाँ, एक्रूवल मतलब 2 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक होता है कैश एंड दूसरा होता है क्रेडिट पे। एक्रूवल मतलब ना हम एक्रूवल का एंट्री लेते हैं, एक्रूवल मतलब प्रीपेड या हमारा पेंडिंग जो रहता है, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं हम, दोनों ट्रांजैक्शंस। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो आप देते हो ना एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, कि कितना देना बाकी है मेरा। सो ये एक्रूवल के बेसिस पे होता है। सो ये कंसेप्ट कैसे आया, हाँ, आप कैश का आपने बता दिया कि ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, कैश ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करोगे। अगर मैंने क्रेडिट पे लिया है, मैंने क्रेडिट पे उनका पैसा देना मेरा बाकी है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल टेक दैट दिस इज मार्च एंडिंग पीरियड, हाँ, 31 मार्च का हमारा पेंडिंग है, मैं फेब्रुवरी में हूँ, आई हैव स्टिल नॉट पेड दैट मनी, बट मैंने सर्विस तो ले लिया, आपसे कुछ तो सर्विस ले लिया, हाँ, कुछ तो मुझे डिलीवरी चाहिए था, आपने डिलीवरी दे दिया, डिलीवरी का सर्विस मैंने ले लिया, आई हैव रिसीव्ड दोज गुड्स ऑल्सो, बट डिलीवरी चार्जेस आई हैव नॉट पेड, हाँ। सो मैंने बेनिफिट ये साल में लिया है तो उसका एक्सपेंसेस भी मुझे ये साल में ही करना पड़ेगा, इवन दो आई हैव नॉट पेड। तो मैं क्या करूंगी, क्या करते हो आप अकाउंटिंग में कि 31 मार्च में आप प्रोविजन देते हो कि मैंने इसका इतना पैसा देना बाकी है। सो बैलेंस शीट में आप दिखाते हो आउटस्टैंड लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्यों दिखाते हो, क्योंकि दैट इज पर्टेनिंग टू दिस ईयर, बेनिफिट ले लिया। सो ये दिस इज अगेन कनेक्टेड टू मैचिंग कंसेप्ट है, हाँ, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एक दूसरे में लिंक्ड है ये, हाँ। हमेशा मैचिंग कंसेप्ट ले लेते हैं, इसके बाद में ड्यूअल एस्पेक्ट बाद में लेते हैं, हाँ। एक्रूवल मतलब बोथ ट्रांजैक्शंस, this is based on cash plus credit transaction. See, accrual concept is based on recognition of both cash and credit transaction. In case of cash transaction, owner's equity is instantly affected as cash affect either received or paid. Immediately मेरा cash balance up down हो जाता है ना, मैंने पे किया आ गया पैसा, कैश है। तो credit transaction में क्या होता है, however a mere obligation towards और बाय द बिजनेस इज क्रिएटेड, सिर्फ ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि मुझे उनको पेमेंट, आई एम पेएबल टू यू, ऑब्लिगेशन क्रिएट किया, हाँ। व्हेन क्रेडिट ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट विच इज जनरली द केस, रेवेन्यूज आर नॉट द सेम एज कैश रिसीट एंड एक्सपेंसेस आर नॉट सेम एज कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब
कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश में मेरा इमीडिएटली अप डाउन होगा, लेकिन क्रेडिट है तो क्रेडिट का इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं होता ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसमें आउटफ्लो नहीं है, सिर्फ ऑब्लिगेशन क्रिएट किया। मैं एक्चुअल में जब भी पे करूँगी ये अगेंस्ट दिस ऑब्लिगेशन, मैं क्या करूँगी, क्रेडिट है जैसे मैंने बोला, अंडरस्टूड ना दैट एग्जाम्पल, कि मेरा मार्च एंडिंग मेरा लास्ट है, नेक्स्ट मंथ में मैंने आपका सर्विस दिसंबर में ही ले लिया है, स्टिल आई हैव नॉट पेड, सो ये ऑब्लिगेशन है। दिसंबर में मैंने सर्विस लिया, तब भी दिसंबर में मैं एंट्री करती हूँ कि दीज आर द डिलीवरी चार्जेस पेएबल टू यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके मैंने इमीडिएटली एंट्री कर लिया है। सो मेरे बैलेंस शीट में अभी तक अगर 31 मार्च तक मैंने नहीं दिखाया तो वो लायबिलिटी में वैसे ही दिखेगा, एंड नेक्स्ट ईयर में जब भी कैरी होगा तो उसके अगेंस्ट वो मैं पे करूँगी। बट ये साल में मेरा बेनिफिट भी आ गया एंड मेरा लायबिलिटी भी आ गया। ओके, अब ये हो गया एक्रूवल, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ध्यान में रखना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए प्रोविजन करना है, दैट इज एक्रूवल। हाँ, आप बाद में कंपनी में जाके भी बार बार ये सुनोगे कि अरे नहीं उसका एक्रूवल का एंट्री करना है, उसका एक्रूवल का एंट्री करना है। एक्रूवल मतलब क्या है, प्रोविजंस लेने रहते जो जो आपने किया नहीं है, विच इज पर्टेनिंग टू दिस करंट ईयर। क्यों? क्योंकि ये साल का रिलेटेड जो भी खर्चा है, जो भी इनकम है, इसी साल में आना चाहिए, नेक्स्ट ईयर में आप यू कांट कैरी। मैचिंग कंसेप्ट क्या है? दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम एट विच दे आर इनकर्ड। In general, revenues earned should be with expenses incurred during the accounting period. See, so for the application of this concept, several adjustments are made for prepaid expenses, accrued income, etc. The operating result of an accounting period can be measured only when incomes are compared with the related expenses incurred. मतलब क्या है? आपने बेनिफिट ले लिया उसका दिसंबर में, दिसंबर में ही उसका खर्चा भी जाना चाहिए। सो उसका रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड मैच। मैचिंग कंसेप्ट मतलब क्या? रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड मैच। और ऊपर देखा एक्रूवल मतलब क्या? प्रोविजंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश प्लस क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ध्यान में रखना। अब ड्यूअल एस्पेक्ट आपको पता है। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब एवरी ट्रांजैक्शन हैज dual effect, debit and credit. Then realization concept. Realization मतलब मैंने जो बोला कि कैश कितना आ रहा है, कैश ट्रांजैक्शन है तो पैसा इमीडिएटली रियलाइज होगा, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है देन ओनली ये राइट टू रिसीव हो रहा है, मतलब मुझे ये पैसा मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रियलाइजेशन में सेकंड लाइन देखना, सेलिंग गुड्स इज रियलाइजेशन, रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट। रियलाइजेशन मतलब मैंने अगर सेल किया कैश पे, मुझे पैसा रियलाइज होगा, रियलाइजेशन है। हाँ, मैंने सेल किया क्रेडिट पे, क्रेडिट पे सेल किया, तब भी भाई मुझे राइट टू रिसीव हो रहा है, पैसा मिलेगा ना बाद में, आज नहीं मिलेगा बट क्रेडिट टर्म के हिसाब से मिलेगा मुझे। सो उसमें भी रियलाइजेशन हो रहा है। बट फॉर एग्जाम्पल मेरा मार्केटिंग टीम ने एक ऑर्डर लेके आया है, ये नया कस्टमर है, उसको हमें गुड्स बेचना है, हमें ऑर्डर मिला है न्यू, ये रियलाइजेशन है? नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर मिला है। वो ऑर्डर के आगे जब भी हमारा गुड्स जाएगा तब ये इट विल स्टैंड फॉर टू क्रिएट राइट टू रिसीव, पैसे मिलेंगे। रियलाइजेशन पता चल रहा है कि पैसा आना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए, रियलाइजेशन मतलब। See, last line. Accordingly, revenue is said to have been realized when cash has been received or right to receive cash on the sale of goods and services or both has been created. Realization मतलब एक तो कैश मिलना चाहिए या राइट टू रिसीव मिलना चाहिए। अगर क्रेडिट पे करते हो तभी भी राइट टू रिसीव, आप मेरे कस्टमर हो तो आप पैसा पे करोगे ना, मैंने क्रेडिट पे दिया है, क्रेडिट का हमारा टर्म्स रहता है, कंपनी का हर एक कस्टमर के साथ अलग अलग रहता है, ठीक है। अगर महिंद्रा है तो मैं बोलूँगी कि बाबा विद इन 45 डेज, 0 to 45 डेज का क्रेडिट पीरियड है, उसमें आपको देना है। हाँ, अगर दूसरा है, हीरो है, हाँ होंडा है, दूसरा कंपनी है, तो मे बी 30 डेज होगा, मे बी 50 डेज होगा,
वो डिपेंड्स ऑन द कस्टमर एंड कंपनी का एग्रीमेंट के हिसाब से रहता है, ठीक है, बट पैसा तो मिलता है। सो राइट टू रिसीव होता है, रियलाइजेशन मतलब पैसा आना चाहिए। कॉस्ट कंसेप्ट मतलब it states that all assets are recorded in the books of account at their purchase price. Purchase price मतलब क्या है, उसका cost of acquisition, transportation, installation, not at market price. हाँ, हमेशा याद रखना, asset जब भी आप buy करते हो ना, तो for example I bought say laptop at 80,000 rupees. laptop नहीं, मशीनरी ले लेते हैं उसके अगेंस्ट। हाँ, तो मशीनरी मैंने ले ली 80,000 रुपीज़ की है वो मशीनरी। सो मेरा जो कॉस्ट आएगा, हाँ, वो नॉट ओनली कि वो दुकान में 80,000 है, बट मैंने मेरे फैक्ट्री में लाया है क्या, नहीं लाया, ठीक है। सो वाइल अप टू द एक्सपेंसेस विच आर कैरिड टू पुट टू यूज दैट असेट, जब तक वो मैं मशीनरी स्टार्ट नहीं करती तब तक के जो भी असेट्स है, वाइल टू ब्रिंग दैट असेट टू माई प्रीमाइसेस, जो भी असेट, जो भी खर्चा होता है, दैट गोज एज माई कॉस्ट ऑफ दैट असेट। हाँ, सो मैंने 80,000 का मेरा मशीनरी है, मैंने डिलीवरी चार्जेस, वो फ्रेट जो है गाड़ी में डाल के लाने के लिए कुछ 5,000 पे किए, उसके साथ ऑपरेटर आया, ऑपरेटर ने मुझे वो इंस्टॉल करके दिया मशीनरी से 2,000 रुपीज़ उसने चार्ज किया। तो मेरा व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ माई मशीनरी, 80,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, ठीक है, 87,000 वुड बी माई कॉस्ट, ओके, टिल टू ब्रिंग दैट असेट टू माई प्रीमाइसेस। ये मेरी टोटल कॉस्ट होगी। अब ये 87,000 की अगर मुझे मार्केट में सेल करूंगी, मुझे मिलेगा से 95,000, सो मैं बुक में 95,000 को दिखाऊंगी एट मार्केट प्राइस, नहीं, ऑल असेट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्लियर है, असेट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। वैसे ही एग्जाम्पल दिया है, 5 लाख का मशीनरी है, मशीन परचेज किया है, 1,000 का ट्रांसपोर्टेशन पे किया, 2,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, तो ये सब मिला के द सम ऑफ ऑल दीज आइटम्स 5 लाख 3,000 पे 3,000 पे कॉस्ट दिखेगा एज ए हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसके बाद फिर ये कॉस्ट पे आप डिप्रिसिएशन वगैरह ईयरली चार्ज करोगे बेस्ड ऑन द यूज ऑफ दैट एसेट, ठीक है। यहाँ पे विल स्टॉप आज के लिए। कंसेप्ट पढ़ के आना, और इजी है, मतलब इसके अगर एग्जांपल्स हम देखेंगे ना बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, तो पता चलेगा आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी आर क्लोजिंग टुडेज लेक्चर।